So good morning, everyone. Good morning. Sir. Good morning. Morning, sir. Today we have some revision. Okay, we have to do revision of HTML classes जो हमने starting से किया था उसका आज थोड़ा revision करेंगे, ठीक है, from beginning. So let me open the files which already saved in computer. So this is the first question. We did in Excel. Oh, sorry, in HTML. इसको ओपन कर लेते हैं, चलो गूगल क्रोम पे. लेट मी ओपन द कोडिंग्स आल्सो. हाँ, this is simple coding of HTML program. Okay, in this हमने क्या स्टार्ट किया था, and how to start HTML program. You have to start HTML program by the HTML tag जो स्टार्टिंग में है यहाँ से, ठीक है. एक मिनट, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं. So it will wait. Yeah, now it's go okay, I think. Okay, so we have to start the HTML program from this HTML attribute. Then head we have to start. Then you have to write title. Then we will write one title here. Whatever you will write in the title tag, then close this title tag. जो भी आप यहाँ पे लिखोगे sorry जो भी आप यहाँ पे टाइटल टैग के बीच में लिखोगे, whatever you will write in between this title tag, it will come on the website. वेबसाइट में जो ऊपर टाइटल बार होता है यहाँ पे लिख के आएगा जो भी आप लिखोगे, ठीक है. Suppose I write here the Bosco Bogle, so that's why it coming here Bosco Bogle also. Then you have to close the head. Then we start the body. और आप बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो सारा का सारा पेज के अंदर शो करता है ऐसे, ठीक है. जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे यहाँ पे, whatever you write in between the body tag, it will show you here in this page. ये पूरा शो करता है. Okay. And this BR tag, okay, this BR tag used for the new line. Whenever you want to write something in a new line, कुछ नया लाइन में लिखना, उसके लिए हम क्या करते हैं, BR tag. Like MS Word में you have to press X enter but enter key, okay. When you press enter key तो क्या होता है, कर्सर वन लाइन डाउन हो जाता है. सेम अगर आपको वेबसाइट के ऊपर कुछ टाइपिंग करना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है, कुछ लाइंस लिखना है, और इफ यू नीड सम स्पेस between the two lines, so you have to use the break tag BR, okay, this BR tag, or you can say BR attribute also. यहाँ पे देखो, after Bosco Delhi I apply 2 times BR tag, so there's this much space. But अगर आप like after Bogle Center, I write here the Bogle Center, then I give only 1 time BR, so only 1 line down like this. But if you need more space, then you have to give more BR tag here. आपको यहाँ पे और BR tag लिखना पड़ेगा. Suppose I'm writing here the BR like this. इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार. जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, बिटवीन द भोगल सेंटर और ये जो लाइन है दूसरा वाला 1-1/6 से शास्त्रमठ, इसके बीच में और गैप आ जाएगा लाइक दिस. इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगेन वो वापस पहले ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमने वहां से BR टैग रिमूव कर दिया है. सो और इफ यू गॉट द डिफरेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग, BR टैग से क्या होता है, ठीक है. देन वी and at the last line no need to apply the BR tag here because after this New Delhi 110014 I'm not writing anything below this line, so I'm not using BR tag for it. Okay, BR tag सिर्फ लाइन के बीच में कुछ गैपिंग करने के लिए तब यूज किया जाता है. Okay, so this first question is done. Now let me open the second question. Open with sorry. Okay, in the second question, what I write here, HTML tag, then head tag, then title tag, and the title I write the paragraph tag, so that's why coming here paragraph tag written here, क्योंकि आपको बताया था आप जो भी लिखोगे टाइटल टैग के बीच में वो सारा का सारा मैटर यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है. ओके, देन हमने क्या टाइटल टैग क्लोज किया, देन वी क्लोज द हेड टैग आल्सो, देन वी स्टार्ट द बॉडी टैग.
उसके बाद हमने स्टार्ट किया पी, दिस टैग पी एट्रीब्यूट, दिस कॉल्ड द पैराग्राफ टैग, ओके, दिस इज कॉल्ड द पैराग्राफ टैग। उसके बाद हमने एक और नया चीज यहाँ पे लिखा है between this comment, okay, and this is called the comment tag, this is called the comment tag। ये जो लिखा है ना, ये वाला साइन जो है, ये क्या होता है, comment tag के लिए होता है। और वट एवर यू विल राइट इन दिस टैग, इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे, ये आपको पेज पे प्रीव्यू में शो नहीं करेगा, इट विल नॉट कम ऑन द प्रीव्यू, ओके, इट फॉर द इंटरनल पर्पस for the programmer। Suppose you are a web designer, you are making some website, you are writing some codings, and आपने कुछ टैग्स या कुछ आपने ऑप्शंस यूज किया किसी काम के लिए, और इन फ्यूचर इफ यू फॉरगेट तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्यों यूज किया था। सो यू कैन राइट इन अ कमेंट टैग वट एवर यू वांट टू गिव, राइट सम नोट्स, आप कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स या कुछ लिखना चाहते हो इस कमेंट टैग के बीच में लिख सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर आप कभी भी उस वेबसाइट पर दोबारा काम करोगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि आपने ये क्यों लिखा था, आप क्यों ये वाला यूज कर रहे हो, कहा ये वाला टैग क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और आपको काम करना है। सपोज आपने इनकम्प्लीट काम किया, आपको वो काम पूरा करना है, लेकिन अभी आप उस टॉपिक को छोड़ के कुछ और काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट टैग के बीच में लिख सकते हो, यू कैन यूज दिस कमेंट टैग एंड यू कैन राइट दैट इट्स इनकम्प्लीट, वी हैव टू राइट सम मोर थिंग अबाउट इट, और कुछ पार्ट्स रह गया है, कुछ टॉपिक्स रह गया जो मुझे बाद में इंक्लूड करना है, तो आप लिख के रखो। तो वो आपको यहाँ पे पेज का जो प्रीव्यू होगा, जब आप उसको होस्ट करोगे तो आपको शो नहीं करेगा, अपलोड करोगे, ये सिर्फ जब बैकग्राउंड में आप कोडिंग चेक करोगे, देन ओनली यू कैन सी दैट, okay, so this comment tag used for that purpose only, okay, and whatever you will write in the paragraph tag, ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है। एक मिनट मैं जरा इसको टैप करता हूँ। सपोज लाइक दिस, सी यहाँ पे हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, ओके, हम यहाँ पे ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ ठीक है। इवन इफ आई एम गिविंग हियर स्पेस ऑल्सो, यहाँ पे मैं इन बैकग्राउंड कोडिंग आई प्रेस इंटर लाइक दिस, मैं यहाँ से इसको इंटर प्रेस कर दूंगा ऐसे कर करके, इसको सेव कर दिया, फाइल को फाइल किया, सेव किया, यू कैन सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, ये इसको एक पैराग्राफ बना देगा, पैराग्राफ में सारा एक साथ ही आएगा, आप कितना भी बीच में स्पेस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसमें स्पेस दो चाहे मत दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने पैराग्राफ यूज किया है, पैराग्राफ टैग, सो इट विल कम लाइक ए पैराग्राफ, इट विल शो लाइक ए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ ही बना देगा उसको। एक पैराग्राफ खत्म हुआ, आप चाहते हो कि दूसरा जो मैटर है, दूसरा टॉपिक वो एक अलग से पैराग्राफ में शो करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज दिस पैराग्राफ, यहाँ से इस पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, देन अगेन स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, देन ये कंप्लीट हुआ, फिर हमने इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और इससे आ गया, ठीक है। बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, समटाइम्स क्या होता है, हम वेबसाइट बनाते हैं, कोडिंग सीखते हैं, लेकिन इन द बॉडी ऑफ द पेज नथिंग विल शो, आपको पेज पे कुछ भी शो नहीं करता, इट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस एरर इन टाइटल टैग। अगर यहाँ पे टाइटल टैग के बीच में आप स्पेस लगा दोगे लाइक दिस, तो टाइटल टैग गलत हो गया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज नहीं हुआ है, और अगर टाइटल टैग क्लोज नहीं हुआ है तो इस पैराग्राफ के साथ में जो भी नीचे लिखा हुआ है सारा का सारा यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अंदर शो करने लगेगा, टाइटल टैग के अंदर। ये सारा कोडिंग यहाँ पे आ गया, देखो ऊपर टाइटल बार के अंदर, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एरर। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो टाइटल टैग है ये प्रॉपर्ली ओपन एंड क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होगा, इफ यू पुट रॉन्ग साइन हियर लाइक दिस ऑल्सो, देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क, तब भी ये काम नहीं करेगा अगर ये साइन गलत हो गया है तो, ठीक है। सो वी हैव टू पुट द करेक्ट साइन हियर, प्रॉपर्ली इसको ओपन करो एंड प्रॉपर्ली इसको क्लोज भी करो, देन ओनली दिस पेज कैन विजिबल। अगर पेज पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है ऑन एचटीएमएल पेज, सो इट कैन बी रीजन ऑफ द मिस्टेक ऑफ द टाइटल टैग, टाइटल टैग में कुछ भी मिस्टेक होगा तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। I think this question is also done. So now let me go for the third question, यहाँ पे नहीं, थर्ड फोर्थ में भी सेम ही वही सब कुछ था, ये सब कुछ ही था इसके अंदर। Okay, now let me go for the fifth question. The fifth question is about the marquee. Okay, fifth question about the marquee. देखते हैं क्या है marquee में।
इसका कोडिंग भी ओपन कर लेते हैं। सी, इसमें सिंपल एचटीएमएल टैग हेड टाइटल एंड टाइटल क्लोज किया, एंड देन हेड क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, सॉरी बॉडी स्टार्ट किया, देन आई राइट हियर द वन वर्ड बॉस्को दिल्ली। क्या लिखा है? बॉस्को दिल्ली। और बॉस्को दिल्ली से पहले हमने क्या लगाया? मार्क्यू टैग, MARQU मार्क्यू, और यहाँ से मार्क्यू को क्लोज कर दिया। इट्स अ सिंपल मार्क्यू। ओके, सिंपल मार्क्यू में क्या होगा? जो भी आप लिखोगे बिटवीन द मार्क्यू टैग, ओके, दिस ओपनिंग टैग ऑफ मार्क्यू एंड क्लोजिंग टैग ऑफ मार्क्यू, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे, वट एवर यू विल राइट इन बिटवीन दैट, ये ऑब्वियसली पेज में राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करेगा। इट विल मूव फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट साइड. It's a simple coding, okay? And now it's up to you. You can change the direction also of this mark. आप इस mark को direction change कर सकते हो, like from right to left और left to right कर सकते हो इसको, ठीक है? और from top to bottom और bottom to top इसको कर सकते हो, इसका movement. It's totally depends on you. You can make some more changes, like if you click the mouse here, so it should stop. आप यहाँ पे click करोगे तो stop हो जाना चाहिए, या फिर mouse को इसके ऊपर लेके जाओगे to take mouse over it, so it should stop. When you release the mouse from here, so it will start again. तो ये बहुत सारा कोडिंग से वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है? सो नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5B. And there's a more condition, like you can apply that this loop, okay, like how many times this will move. वो तो क्या randomly चलता रहेगा कंटिन्यू, इसलिए apply the, if you apply the simple marquee, so it will continue going on, okay, continue movement करता रहेगा. But if you write something more like loop 1, अगर आपने loop 1 लिखा तो whatever you will write under the loop 1 condition, it will move only one time in the page. ये सिर्फ one time पेज के ऊपर मूव करेगा. तो फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ सिर्फ एक बार ही मूव करेगा. देखो वो फर्स्ट वाला लाइन अब शो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट कमिंग, ओके. द सेकंड वाले में हमने क्या लिखा? इन द सेकंड कोडिंग आई राइट मार्क्यू लूप 2, मार्क्यू लूप 2, सो इट मीन इट विल रिपीट ओनली 2 टाइम्स, नॉट मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है? नाउ जस्ट वेट एंड वॉच. Like this, okay. Now the third one, this one I apply for this condition is loop 3. It's mean only 3 times it will move, not more than 3 times. You should know all the feature of the marquee, because if you know all the features, so when you are making websites, so you can make more interesting the websites with these options. As you already make some website, I given you some topics on that. So some of the students, they are using this marquee option on it, or it's really looking wonderful, huh? So now I'm going to close this question also. It's clear. Okay, some more feature about the marquee in question number 5C. marquee direction right, okay. Whatever you will do, have to change, only change in this opening marquee tag. जो भी मार्क्यू टैग का ओपनिंग होता है, ओपनिंग एट्रीब्यूट, उसमें आप चेंजेस करते हो, ठीक है? क्लोजिंग सिंपल होता है, ओनली जो ओपनिंग वाला होता है उसके अंदर आप चेंजेस करते हो, जो भी आपको कंडीशंस अप्लाई करना है, जो भी आप करना चाहते हो. लाइक अप्लाई है दैट डायरेक्शन राइट. क्या क्या इसको? डायरेक्शन राइट. फर्स्ट वाले वर्ड को हमने क्या किया? डायरेक्शन राइट किया है. सो एंड बिहेवियर अल्टरनेट. अगर आप बिहेवियर अल्टरनेट नहीं करो तो क्या होगा? ये वन साइड ही चलता रहेगा. मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से. आई एम गोइंग टू कट दिस and going to save it and refresh. Now you can see it is going from left to right side. The first one is going to left to right side. Why? Because of only this coding marquee direction right side. और ये एक बार जाने के बाद again from left to right will it will move. Second वाले मार्क्यू में हमने क्या किया? डायरेक्शन लेफ्ट ओनली, so it will go only from the right to left side. देखो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है और राइट से लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन अप्लाई किया. बट if in the first condition I write here some more thing like behavior alternate, so behavior alternate, it's mean once it will go to the from left to right, then again it will come back from right to left. but the second वाले में हमने डायरेक्शन दिया है but not behavior,
सो ये अगेन रिपीट नहीं होगा, ओके, इट विल नॉट गो बैक द सेकेंड वन। ये सिर्फ सेकेंड वाला जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगा, जैसे कि देखो राइट से लेफ्ट चला गया पूरा कंप्लीटली, देन अगेन राइट से लेफ्ट जाएगा, बट जो फर्स्ट वाला था ये लेफ्ट से राइट जाएगा, देन राइट से अगेन लेफ्ट में मूव करेगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर अल्टरनेट कोडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5D। Now there's another question. This is about the speed of scrolling. Okay, this question is about the speed of scrolling, as I mentioned in the title bar. Okay, in the title tag, speed of scrolling of Marquee. How? हमने यहाँ पे क्या लिखा, Marquee तो सिंपल लिखना होता है, साफ हमने लिख दिया scrolling amount 10, scrolling amount 10, ठीक है। scrolling amount 10 क्या, तो थोड़ा स्लो मूव करेगा। अगर आप scroll amount का क्या करोगे, scroll amount 15 करोगे थोड़ा और फास्ट मूव करेगा, scroll amount 20 होगा तो वो और ज्यादा मूवली फास्ट करेगा। देखो पेज के ऊपर जिसको जितना स्क्रॉल अमाउंट करोगे वो उतना ज्यादा मूव करेगा। एंड इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन अप्लाई दिस मार्की ओवर ओनली द टेक्स्ट, यू कैन अप्लाई दिस मार्की ओवर द इमेजेस आल्सो, ठीक है। आप मार्की ऑप्शन को इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ओवर द टेबल्स आल्सो यू कैन अप्लाई। लाइक आपने पूरा टेबल बनाया, टेबल के स्टार्टिंग में आपने ये मार्की टैग लगाया और क्लोज कर दिया, सो दिस टेबल भी आल्सो मूव ऑन द पेज, वो सेम इस पेज के ऊपर मूव करेगा। Question number 5E. It's about to Marquee tag delay in start. Okay, Marquee tag delay for start. When you open this page, see Marquee is starting, but second वाला थोड़ा ज्यादा स्लो हो रहा है और फर्स्ट वाला थोड़ा कम स्लो स्टार्ट हो रहा है। When you start the page, Marquee will start. It will take some time, and the time is depends on this coding. आपने क्या लिखा है, scroll delay 10, so थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा। और जिसको आपने लिखा है स्क्रॉल डिले 100, तो ये और ज्यादा स्लो हो गया, ठीक है। आपको सिंपली ये टैग अप्लाई करना है, स्क्रॉल डिले। अगर आप चाहते हो कि पेज स्टार्ट होने के साथ में जो मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो, वो स्लो स्टार्ट होगा, ठीक है। नॉट अबाउट द स्पीड, स्पीड इज डिफरेंट थिंग कि वो फास्टली मूव हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो मार्क्यू स्टार्ट ही स्लो हो रहा है। एकदम से पेज स्टार्ट होगा तो वो नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम वेट करके तब वो स्टार्ट होगा मार्क्यू, ठीक है। सो दिस टैग इज कॉल्ड द scroll delay. Okay, so now the question 5F. Vertical space. Okay, vertical space. So when you write here Marquee space 50, so this is space from the top of the page 50, like this much space. अगर आपने 100 स्पेस दिया तो इतना गैप हो जाएगा बीच में। अगर थर्ड वाले को हमने क्या दिया है, वी स्पेस 150, तो इतना पास में हो गया। आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। सपोज आई एम राइटिंग हियर हाउ मच, लाइक 110, इसको 110 किया तो वो देखना ये जो नीचे वाला था इतना गैप है और नजदीक आ जाएगा, सी, और नियर बाय हो गया। और उसको वापस करोगे तो आप यहाँ पे इसको सेव कर लिया हमने। अभी देखो कितना स्पेस है और ज्यादा नीचे आ जाएगा जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ये रहा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि वो पेज के ऊपर थोड़ा सा गैप देके नीचे स्टार्ट होगा, वो मूवमेंट होगा, सो यू कैन गिव विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5G। इट्स अबाउट द कलर फॉर द मार्क्यू, ठीक है। मार्क्यू हाइट हमने दिया है, यहाँ से मार्क्यू हाइट दिया और उसका हमने कर दिया बीजी कलर येलो। इट्स ऑन द बैकग्राउंड कलर येलो ऑफ द मार्क्यू, मतलब जिस एरिया के अंदर ये मूवमेंट करेगा उसका हाइट हमने डिसाइड किया है कितना होना चाहिए, हाइट 30, तो यहाँ पे 30 हो गया और बैकग्राउंड में येलो कलर कर दिया है, ठीक है। सेकंड वाले मार्क्यू हमने क्या किया है, मार्क्यू हाइट को 20 किया, थोड़ा छोटा कम कर दिया है और करने के बाद कलर को हमने कर दिया रेड। अच्छा, ये था हाइट की बात, ठीक है। इट्स अबाउट द हाइट, वी कैन
कस्टमाइज द विड्थ ऑफ द मार्क्यू आल्सो, ठीक है, इसको हमने विड्थ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या करा हमने इसके अंदर मार्क्यू के अंदर, थर्ड वाले के अंदर, मार्क्यू विड्थ 70%, 70%, इट्स मीन वट एवर इज द विड्थ ऑफ द पेज, इस पेज का जितना भी विड्थ होगा उसका 70% ही यूज होगा मार्क्यू के लिए। ये वाला एरिया नहीं, सिर्फ इतना एरिया यूज होगा मार्क्यू के लिए, इसके अंदर मूवमेंट करेगा। आप जब वेबसाइट विजिट करते हो, whenever you visit the website, so you can see this kind of examples on the website that the things are moving on the page but not from the corner, okay, it's from the half of the page they are using for the marquee, इसके अंदर मूवमेंट करता है, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। so coding is very simple with the in the marquee you have to write only height, और यहाँ पे हाइट दे दो जितना भी आपको हाइट चाहिए, कलर चाहिए तो बीजी कलर में कलर अप्लाई कर दो, अगर आपको उसका विड्थ इंक्रीज करना है तो आप विड्थ यहाँ पे देखते हो 70%, 20%। यू कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ टुगेदर, सपोज हमने हाइट यहाँ पे 30%, यहाँ पे विड्थ भी अप्लाई कर देता हूँ, WIDTH विड्थ, और विड्थ में यहाँ पे कर देता हूँ 50%, सिंपली 50% अप्लाई किया, और यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करो, ये देखो ये 50% पे हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई करते हैं विड्थ ऑल्सो। Is it clear to all of you? Yes, sir. Firdaus? Yes, sir. ठीक है। Now go for the 5G question. सॉरी 5G वाला क्वेश्चन ही किया था हमने भी ना। 5H करना है। फाइव एच क्वेश्चन क्या है, मार्क्यू टैग टू होल्ड एंड स्टॉप, ठीक है, इस मार्क्यू टैग में क्या है, होल्ड स्टॉप करना है। फर्स्ट वाले मार्क्यू में हमने क्या लिखा है, ऑन माउस डाउन दिस स्टॉप, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, मार्क्यू जो मूव कर रहा है इसके माउस क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, जैसे माउस को रिलीज कर दोगे, मैंने रिलीज किया माउस को तो मूवमेंट हो गया, फिर सेकंड वाले को क्लिक किया, देखो स्टॉप हो गया, देखो इसको क्लिक किया ये स्टॉप हो गया, सेकंड वाले को क्लिक किया सेकंड वाला स्टॉप हो गया, थर्ड वाला, आप जिसको भी क्लिक करोगे माउस को क्लिक करके रखोगे तो दिस विल स्टॉप, और व्हेन यू रिलीज द माउस इट विल अगेन स्टार्ट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग। स्टॉप करने के लिए हमको साथ में लिखना पड़ता है ऑन माउस डाउन, ये तो बिहेवियर अल्टरनेट एंड डायरेक्शन लेफ्ट यू नो ऑलरेडी, हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि व्हाट इज अल्टरनेट, जस्ट इट विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट अगेन बैक, डायरेक्शन जो भी आप देना चाहते हो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप करना चाहते हो, एंड ऑन माउस डाउन दिस स्टॉप, ऑन माउस डाउन का मतलब क्या है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे it will stop, and on mouse up it's mean when you release the mouse it will again start, okay, this is a function for marquee stop and start with a click, simple, the same coding for all the three marquee, on mouse down this dot stop for stop, and on mouse up this dot start for start the marquee again, okay, the moment. Now question number 5I. Is the director of vocational teacher assistance program, na? Yeah. Father Biju. Yes. Father Biju Ibrahim. Oh. This is question number 5I, okay, इसमें क्या है, HTML marquee tag however to stop, it's mean no need to click, when you just take mouse over it, जैसे माउस को इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, नो नीड टू क्लिक, सिर्फ माउस को इसके ऊपर ले जाके रख दो वो स्टॉप हो जाएगा, माउस को जैसे इसके ऊपर से हटाओगे अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग। क्या है कोडिंग इसके लिए हमारे पास, बिहेवियर में हमने क्या पे लिखा है स्क्रॉल, स्क्रॉल में अंदर क्या ये चलता रहेगा, देखो ऐसे only in one direction it will go, okay, not alternate, okay, direction में क्या लेफ्ट, so it's mean from it will go from right to left side, on mouse over, on mouse over, हमने पहले क्या लिखा था, क्लिक करने के लिए हमको लिखना पड़ता है ऑन माउस डाउन, ऑन माउस डाउन, ओके, एंड जब माउस क्लिक वाला होता है, और माउस क्लिक करके जब रिलीज करोगे तो ऑन माउस अप, बट when we are going to make this options like no need to click, so we have to write here on mouse over to stop and on mouse out to start, simple coding, okay, on mouse over this dot stop for stop the movement of this option, and on mouse out this dot start to again start the movement, ठीक है, for stop the movement this coding,
and for start the movement, this coding. This question number 5I, so now 5G. फाइव जी मार्क यू स्टार्ट एंड स्टॉप बटन. लास्ट टाइम जो हमने अप्लाई किया था ऑन क्लिक और का कोडिंग, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बटन्स बनाएंगे. ओके सी, सो आई अप्लाई है द मार्क यू टैग. आई राइट ए बिहेवियर स्क्रॉल, स्क्रॉल होगा, डायरेक्शन लेफ्ट कर दिया. यहाँ पे आईडी वी हैव टू क्रिएट हियर वन आईडी हियर. ओके आई एम गोइंग टू क्रिएट वन आईडी हियर एंड आई एम गिविंग द नेम मार्क यू 1. इसको मैंने नाम दे दिया मार्क यू 1. सो द मेन कंडीशन इज दिस. ओके कोडिंग यहाँ पे हमने अप्लाई फिनिश कर दिया. that I create here the ID for this mark you. इसका एक हमने एक ID create generate किया. ID is the mark you 1. So whenever we wants to apply any condition over this mark you ना, so we can call with the name mark you 1. अब mark you 1 नाम से इसको कॉल करेंगे, कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सीधा इसके ऊपर अप्लाई होगा. ओके सेम लाइक दिस क्वेश्चन. हमने यहाँ पे क्या करा, देन वी क्रिएटेड टू बटन्स. वन इज स्टॉप बटन, वन इज द स्टार्ट बटन. दैट इज इनपुट टाइप बटन, सिंपल बटन है ये, बट कंडीशंस वी विल डू चेंज. ओके कैसे क्या है पे हमने इनपुट टाइप बटन, जैसे आप इनपुट टाइप बटन लिखो तो ऑटोमेटिकली ये बटन क्रिएट हो जाएगा. एंड वट एवर यू राइट इन वैल्यू ऑप्शन इट विल शो यू प्रीव्यू हियर. अगर यहाँ पे आप वैल्यू के अंदर अपना नाम लिखोगे सो द सेम नेम विल कम ओवर दिस बटन. ओके अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है बटन 1 के लिए, इस फर्स्ट वाले बटन के लिए ऑन क्लिक सी इज द कैपिटल. ओके इट्स केस सेंसिटिव, सो प्लीज इसको ध्यान से लिखना, इस कोडिंग को याद कर लेना. if you do anything wrong in this coding, a smaller capital letter, so maybe it will not work. So, okay on click document.get element by id. It's mean how it will collect the data. It's collect the data from the id. Which id? mark you 1. क्या हो जाएगा, stop. You are going to make this button for some condition wise. और condition क्या apply किया, on click. Whenever I click on this button, so document.get element id, जो भी इस आईडी से रिलेटेड होगा, दिस मार्क यू शुड बी स्टॉप. ये स्टॉप हो जाएगा, जैसे लाइक दिस, ये स्टॉप हो गया. ओके नाउ सेकंड बटन हमने क्या बनाया है, इनपुट टाइप बटन वैल्यू स्टार्ट. बटन का नाम वैल्यू रखा तो यहाँ पे आ गया. सो यू कैन राइट योर नेम आल्सो, इट विल कम हियर. ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको क्या करेंगे मार्क यू डॉट स्टार्ट, मार्क यू 1 डॉट स्टार्ट. सो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा. जैसे हमने किया था ऑन माउस डाउन क्लिक करने से स्टॉप हो जाता है, ऑन माउस अप करने से वो अगेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है सेम ऐसे ही है. नाउ 5K नंबर क्वेश्चन. Thank you. In this question we apply 2 mark you buttons and 4 buttons. Okay scroll amount 10 किया 15 किया, so the speed is depends on the scroll button. Because of that we already use this scroll amount button. Okay तो हमने यहाँ पे buttons क्या बनाया है, फर्स्ट वाले को this stop mark you 1 and start mark you 2. We apply this, we made these 2 buttons only for the first mark you 1. और जो सेकंड वाला बटन है वो सेकंड के लिए बनाया. जैसे मैं स्टॉप करूंगा तो स्टॉप हो गया, अगर इसको स्टॉप करना तो आप स्टॉप कर सकते हो. आई वांट टू स्टार्ट द सेकंड वन, स्टार्ट हुआ. व्हेन यू स्टॉप दिस वन, आई वांट टू स्टार्ट द फर्स्ट मार्क यू, सो क्लिक है. सेम क्वेश्चन जो पहले किया था सेम अगेन हमने इसके अंदर किया है, बट इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 बटन्स बनाए और 2 मार्क यू बनाए. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 बटन और 1 मार्क यू बनाया था. ठीक है इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 1 बटन और 1 मार्क यू बनाया था. इसके अंदर हमने 2 मार्क यू बनाया है और 2 बटन बनाया है सबके लिए. कोडिंग सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है. लाइक टू स्टॉप मार्क यू सिंपल कोडिंग क्या है वही सेम है. ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टॉप. स्टार्ट करने के लिए सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाय स्टार्ट, दिस वन सिंपल कोडिंग, नथिंग एल्स.
So I think this marquee option clear to all of you. Am I right? Yes, sir. Maybe for today, no, sir. Yes, Sorry? sir. Okay, fine. So question number 6. So when you are making website, तो sometimes क्या होता है, हम कुछ जो topics होते हैं, कुछ lines होते हैं, कुछ headings होते हैं, we have to write some in bold letters. ठीक है? So there's a different heading tag also in the HTML. So the biggest heading is the H1. Biggest heading is the H1. Whatever you will write in between the H1 tag, it will come like this side, the biggest one. H2 थोड़ा छोटा होता है, H3 और छोटा होगा, H4 और छोटा होगा, H5 और छोटा, and H6 is the smallest heading. H6 is the smallest heading. ठीक है? और अगर आप H6 से अलग आप कुछ भी लिखोगे तो वो सिंपल आएगा. मैं थोड़ा सा ब्रेक टैग भी लगा लेता हूँ. और अगर आप कोई टैग नहीं लगाओगे तो वो सिंपल इस तरह के फॉन्ट में आएगा. ठीक है? This is without heading. These are headings: H1, H2, H3, H4, H5, and H6. So now question number 7. प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. ओके, ये बहुत अच्छा टैग है, बहुत अच्छा एट्रीब्यूट होता है कि इसके अंदर आपको अगेन एंड अगेन बीआर टैग वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है. बताता हूं कैसे. सपोज यू आर मेकिंग वन वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाया, इसके अंदर आपने स्टोरी लिखा हुआ है. ठीक है? एंड देखो यहाँ पे कितना सारा, जैसे यहाँ पे इसके बाद हमको, अगर आप सिंपल आप यूज करोगे, यहाँ पे आपको बीआर टैग लिखना पड़ेगा, तब ये नया लाइन स्टार्ट होगा. अगर आप बीआर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे इस पे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा. लाइक आफ्टर एंग्रीली आई गिव हियर स्पेस, देन लाइन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा, ब्रेक टैग यूज करना पड़ेगा, लाइक दैट यू कैन राइट. बट अगर आप ये बार बार नहीं करना चाहते, सिंपल ऐसे ही टाइप हो, जैसे यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, ऐसे ही स्पेस दो, सब कुछ करो. यू जस्ट नीड टू राइट वन टैग, that is the PRE, pre-formatting text, pre-formatting text. okay, ये वाला टैग अप्लाई करोगे, एट्रीब्यूट करोगे, तो जैसे आपने यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है एज इट सेम आपको यहाँ पे पेज के ऊपर बॉडी में शो करता है. सपोज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस PRE टैग और यहाँ पे मैं P टैग लगा देता हूँ, पैराग्राफ टैग. तो देखो डिफरेंस क्या होगा, ये सब ऐसा आ जाएगा. ठीक है? बट इफ अगर आपको मुझे यहाँ से पैराग्राफ अलग करना है, यहाँ से अलग करना है, ये सब कुछ अगर आपको अलग करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे PRE टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा. बट PRE टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है. ओके, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक होता है टैग एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग. फॉन्ट टैग में यहाँ पे लिख दो साइज, फॉन्ट साइज में 5 लिख देता हूँ और सबसे लास्ट में इसको बंद भी कर देता हूँ. ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज हो गया. ठीक है? सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट टैग आल्सो, क्योंकि अगर आप फॉन्ट टैग नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो साइज नॉर्मल हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा. सो यू कैन डू विद लाइक दैट. इसको अगेन हटा देता हूँ, जैसे सेम था वैसे इसको सेव कर देते हैं. ठीक है? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. This question number 8. Question number 8 is depends on the font selection. Okay, so अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था फॉन्ट अप्लाई करना. ठीक है? फॉन्ट फेस, सॉरी द साइज मैंने बताया था. अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है. ओके, फॉन्ट साइज मैंने बताया था. वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल आल्सो, लाइक वी हैव टू राइट फॉन्ट देन फेस देन कैस्टल लेयर, और अदरवाइज यू आर राइटिंग एरियल आल्सो. देयर इज लॉट्स ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर. अगर आप एरियल फॉन्ट अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिटर्न राइटिंग चेंज हो जाएगा लाइक दिस. आप जैसा फॉन्ट नेम अप्लाई करोगे वो सारे इस पर आ जाएगा. फॉन्ट क्या होता है, ये सारा फॉन्ट्स नेम है. ठीक है? यहाँ से आप कोई भी नाम इसके अंदर से अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर. या डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आर हियर.
question number 9. This question number 9. Font color tag. Okay. फॉन्ट साइज हमें लिखा, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था फॉन्ट से लिखोगे तो 5, तो 5 आ गया इसके अंदर। किसके ऊपर? जो ऊपर लेट अस एंजॉय जो लिखा है हमने परिवार लाइन, लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस स्टोरी ऑफ दिस। अगर यहाँ पे आप साइज थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, मैं 7 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? फॉन्ट साइज थोड़ा सा और इंक्रीज होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, कलर यहाँ पे रेड दिया तो रेड कलर हो गया। यहाँ से हमने फॉन्ट को बंद कर दिया, अगर आप फॉन्ट बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? बाकी जितना पैराग्राफ है सबका कलर सेम हो जाएगा। मगर यहाँ से बंद कर नहीं करता हूँ, इफ आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस फॉन्ट टैग हियर, सो व्हाट विल हैपन? रेस्ट ऑफ दिस पैराग्राफ विल आल्सो कम रेड, ये सारा रेड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसको बंद कर दोगे यहाँ से फॉन्ट टैग को, यहाँ से फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इफ यू लाइक दैट। ठीक है, जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हो कंडीशंस, उसके बाद उस टैग को बंद कर दो। देन स्टार्ट वन पैराग्राफ हियर, इसको पैराग्राफ को लिखा, पैराग्राफ क्लोज किया, एक और पैराग्राफ लिखा, इसे बंद किया। लास्ट में एक हमने लाइन लिखा, मोरल एवरीथिंग डिड दिस, कहाँ गया? देखो ये हमें लिखा है मोरल, मोरल लिखा, मोरल के बाद हमने लिखा है एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। इसको हमने क्या किया? कलर ग्रीन किया है, तो फॉन्ट फेस हमने यहाँ से कर दिया है टाइम्स न्यू रोमन एंड साइज 4 किया है और कलर ग्रीन किया है। ओके, बट दिस अंडरलाइन ओनली ऑन दिस एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू। क्यों? क्योंकि आफ्टर दिस मोरल, जहां पे मोरल लिखा उसके बाद हमने क्या अप्लाई किया? यू टैग। यू टैग किस लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए। और आई टैग किस लिए होता है? इटैलिक करने के लिए। और हमने ऐसे यू टैग भी बंद कर दिया और आई टैग भी बंद कर दिया। एंड वी अप्लाई हियर बी टैग आल्सो, बोल्ड। बोल्ड हमने पूरा अप्लाई किया है, मोरल को भी अप्लाई करना था, तो इसलिए हमने फ्रॉम बिगिनिंग वी अप्लाई द बी। ठीक है, तो इस तरह से ये बोल्ड भी हो गया और एवरीथिंग से लेके वैल्यू तक इटैलिक हो गया और एवरीथिंग से लेके वैल्यू तक ये अंडरलाइन भी हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग। सो आई थिंक आप सबको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? Is it clear Yes, to all sir. of you? Okay, Yes, thank sir. you.